सावधान उत्तिष्ठ। রম মঞ্চাসীন অধিকারীদের আর আগ্রহ করব ওনারা ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্চন করবেন। সব হয়ে যাবে, ওনারা এসে নিলে। लाइट ज़्यादा नहीं हो गई, ये कम होगा। মাননীয় অধিকারীদের আগ্রহ করব আপনারা আসন গ্রহণ করুন। সাবধান উপবিশ। ব্যায়ামযোগ হবে। নমস্কার, অর্ধকোটি চক্রাসন, বিবেকানন্দের স্থিতি আর কাঁধে হাত দেওয়া আলাদা আলাদাভাবে হবে। সাবধান, যোগ क्रमांक 1, যোগ क्रमांक 1 क्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। যোগ 2, যোগ 2 क्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। যোগ 3, যোগ 3 क्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। যোগ 4, যোগ 4 क्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। स्वस्थ। সমবেত গীত। ভারত আমার ভারতবর্ষ,
सुभाषितम् उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धिशक्ति पराक्रमः षडते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो सहायकृता। अर्थ उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम এই ছয়টি গুণ যে ব্যক্তির মধ্যে থাকে ওনাকে স্বয়ং ভগবানও সহায়ক হন। উদ্যমম সাহসং ধৈর্যং बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो सहायकृता। স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত এক যুবক সুদূর মহারাষ্ট্রের নাগপুর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন ডাক্তারি পড়ার জন্য। আর ডাক্তারি পড়ার সাথে সাথে ভারতে বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। এখানে থাকাকালীন কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সময়ে বিভিন্ন সেবা কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিজের ডাক্তার বন্ধুদের সাথে নিয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেরিয়েছেন। বহু দুর্গত মানুষের পাশে চিকিৎসা, তাদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এই যুবক ডাক্তারি পাশ করে যখন ফিরলেন ডাক্তারি পেশায় আর নিযুক্ত নিজেকে না করে সমগ্র জীবন দেশ ও সেবার জন্য ভারত মাতার চরণে নিজেকে সমর্পণ করলেন। দিকে দিকে যুব সম্প্রদায়ের কাছে গেলেন, যুবকদের কাছে, আর ভারত মাতার কষ্টের কথা, ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনের কথা তাদের কাছে আহ্বান করলেন, এসো এই ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য নিজের জীবন আর উৎসর্গ করো। দেশের জন্য মৃত্যু নয়, দেশের জন্য বাঁচতে শেখো, দেশের জন্য কর্তব্য করতে শেখো। দলে দলে যুবক তার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে আর ভারতবর্ষের বহু কাজে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এই যুবক সম্প্রদায় দেশ সেবার জন্য জীবন সমর্পণ করলেন। এই যুবক যিনি কলকাতায় এসেছিলেন একদম 1900 শতকের প্রথম দিকে, সেই যুবকের নাম ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। ডাক্তারজি স্বামীজি যা বলে গেছিলেন, মানুষ চাই মানুষ, এই মানুষ হয়ে পেলেই সব কিছু হইয়া যাইবে, সেই মানুষ তৈরির কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে 1981 সালে আমাদের এই বাংলা প্রান্তে একটি সমিতি তৈরি হয়েছিল, তার নাম ডাক্তার হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি। ডাক্তার হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আর নিয়মিতভাবে বহু সেবা কাজ করে চলেছেন। এছাড়াও ভারতবর্ষের যে যুব শক্তি, যে যুব সম্প্রদায়, তাদের কাছে আর দেশপ্রেমের কথা, তাদের কাছে সেবার কথা, তাদের কাছে সমর্পণের কথা, এই বিষয়গুলি উপস্থাপিত করেছে বারে বারে। আজকে স্বামীজির জন্মদিনে
আমরা এই ডাক্তার হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির পক্ষ থেকে আজকের এই প্রেক্ষাগৃহে আমাদের এই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে যারা যে যুবকরা আর দেশের কাজের জন্য, ভারত মাতার কাজের জন্য, এই দেশ আর ধর্ম সমাজকে রক্ষা করার জন্য ব্রতী হয়েছেন, এমনই যুবকদের আহ্বান করেছে, আসুন আপনারা এই স্বামীজির জন্মদিনে এখানে একত্রিত হন। আমাদের আজকের এই কার্যক্রম স্বামীজির এই জন্মদিনে আমরা এখানে এসেছি। আমাদের মধ্যে আমরা পেয়েছি বহু আর জ্ঞানীগুণী মানুষকে, তার মধ্যে মঞ্চাসীন আছেন আমাদের সমিতির ডাক্তার হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির অধ্যক্ষ ডক্টর জয়ন্ত রায়চৌধুরী মহাশয়। ডাক্তার জয়ন্ত রায়চৌধুরী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের মাননীয় সংঘচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। আমাদের মধ্যে আছেন শ্রীযুক্ত অজয় কুমার নন্দীজি। শ্রীযুক্ত অজয় কুমার নন্দী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পূর্ব ক্ষেত্রের মাননীয় সংঘচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। আমাদের মধ্যে আছেন প্রধান অতিথি রূপে আজকে আমরা পেয়েছি শ্রী রামদত্তজি চক্রধর মহাশয়কে। শ্রী রামদত্তজি চক্রধর মহাশয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহসর কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করছেন। আজকে আমাদের বিশেষ অতিথি এবং বক্তা শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয়জি ঘোষ বলে উনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মাননীয় সরকার্যবাহের দায়িত্ব পালন করছেন। ওনার এই কলকাতায় কয়েকদিনের প্রবাস ছিল। আমাদের সমিতির সৌভাগ্য হয়েছে যে এই সময়ে ওনার খানিক কাছ থেকে কিছুটা সময় বার করতে পারতে। আর এই সময়টাকে আমরা, এই যে আমাদের মধ্যে আমরা যারা এসে পৌঁছেছি, যারা স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত যুব সম্প্রদায়, তাদের কাছে ওনার কিছু বক্তব্য শোনার জন্য আমাদের আজকের এই কার্যক্রমে মাননীয় বিশেষ অতিথি এবং বক্তা শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয়জি ঘোষ বলেকে আর প্রধান বিশেষ অতিথি রূপে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের সমিতির অধ্যক্ষ ডক্টর জয়ন্ত রায়চৌধুরী মহাশয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত রামদত্তজি চক্রধরকে প্রধান অতিথি রূপে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত অজয় নন্দী মহাশয়। আমাদের আজকের এই কার্যক্রমে এই প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহার করতে দিয়েছেন ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টার ইজেডসিসি কর্তৃপক্ষকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিধাননগর কমিশনারেট, পুলিশ কমিশনারেটকে এবং বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি, এছাড়া বিধাননগরে ট্রাফিক পুলিশ, এনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই কার্যক্রম আর আমাদের সফলভাবে করতে দেওয়ার জন্য। এখন স্বামীজির স্বদেশ বাণী।
স্বদেশবাণী। হে ভারত, এই পরাণুবাদ, পরাণুকরণ, পরমুখপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীর ভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর। ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে। ভুলিও না তুমি জন্ম হতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র। ভুলিও না নিজ জাতি মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সতর্বে বলো আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বলো মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কোটিমাত্র অবস্থাবৃত হইয়া সতর্বে ডাকিয়া বলো ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুসজ্জা, আমার যৌবনের উপবন, ভারতের আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বলো ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বলো দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো। এরপর আমাদের বিশেষ অতিথি এবং বক্তা মাননীয় দত্তাত্রেয়জির কাছ থেকে আমরা আর আজকের বিষয় শুনব। তার আগে একটি একক গীত। हरि ओम, हरि ओम। বীর সেনাপতি, বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ, ওই যে ডাকিছে আয় রে আয়, আহ্বানে তার আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায়। বীর সেনাপতি আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে, আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে, ভোগবাদ জাত দৈত্য দলিতে, ভোগবাদ জাত দৈত্য দলিতে, আপনা সপিতে কে যাবি আয়। বীর সেনাপতি স্বার্থদ্বন্দ্ব ভোগ কোলাহল এনেছে জগতে শুধু হলাহল। স্বার্থদ্বন্দ্ব ভোগ কোলাহল এনেছে জগতে শুধু হলাহল। নিভাতে আজিকে এই দাবানল, প্রেম বাড়ি সেজে এনেছে হায়, প্রেম বাড়ি সেজে এনেছে হায়। এসো দেব এসো করুণা নিধান, লহ আজি মম তনু মন প্রাণ। এসো দেব এসো করুণা নিধান, লহ আজি মম তনু মন প্রাণ। কৃপা করি করো এই আশিস দান, কৃপা করি করো এই আশিস দান। তব কাজে যেন জীবন যায়। বীর সেনাপতি, বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ, ওই যে ডাকিছে আয় রে আয়, আহ্বানে তার আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায়। বীর সেনাপতি।
नमस्कार। आज के इस युवा कार्यकर्ताओं के एकत्रीकरण और विशेष कार्यक्रम में मंचासीन सभी महानुभावों को मैं अभिवादन करता हूं। संघ के माननीय सह सरकार्यवाह श्री रामदत्त चक्रधर जी, पूर्व क्षेत्र के माननीय क्षेत्र संघ चालक श्री अजय नंदी जी, दक्षिण बंग प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक डॉक्टर जयंता राय चौधरी जी, सभागार में उपस्थित सभी अधिकारी वृंद, कार्यकर्ता बंधुओं, सर्वप्रथम जिस महानुभाव के जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस विभूति पुरुष के चरणों में वंदन करता हूँ और उनकी प्रेरणा, उनकी कृपा हम सबके लिए सदैव, जिस स्वदेश मंत्र को अभी हमने सुना, मन में उच्चारित भी किया, उस कार्य को अपने जीवन कार्य के रूप में करने के लिए वह हमें बल दे, शक्ति दे, ज्ञान दे, ऐसे कामना करता हूँ। हम सब जानते हैं आज स्वामी विवेकानंद जी के 161 वर्ष पूर्ण होकर 162वें जन्म जयंती के दिन हम यहाँ हैं। मेरा स्वयं का आज सौभाग्य है कि विवेकानंद जी की जन्मस्थली इस कोलकाता शहर में आज मैं इस कार्यक्रम में भी उपस्थित रह पाया और आज कोलकाता शहर में विवेकानंद जी के जन्मस्थली भी है और विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े एक दो स्थानों पर आज प्रातःकाल जाकर दर्शन करने का एक अवसर भी मिला। विवेकानंद जी के जीवन के संदर्भ में हम सभी संघ के कार्यकर्ताओं को पुनः कहने की कोई नई बात शायद नहीं है। हम सभी स्वामी जी के बारे में, स्वामी जी के कार्य के संदर्भ में कम अधिक हम जानते ही हैं। स्वयं हम कार्यकर्ता और समाज के सामने विषय भी रखते होंगे समय समय पर। स्वामी जी के जीवन और कार्य के जिन संदेश के संदर्भ में हम में से प्रत्येक कार्यकर्ता कुछ न कुछ पढ़ा ही होगा। इसलिए जो भी आज आपके सम्मुख में प्रस्तुत करूंगा वो है एक दृष्टि से पुनस्मरण का ही कार्य है। परंतु हमारे यहाँ एक पारायण के पुनस्मरण की परंपरा है हिंदुओं में। जो जानते हैं सैकड़ों बार, हजारों बार जिसको हमने पढ़ा है, कंठस्थ हुआ है, उसको बार बार प्रतिदिन हम उसके पारायण करते हैं, स्मरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, क्योंकि वह जितने बार हम उसके पारायण करते हैं, कहते हैं, उतने हमारे अंदर की शक्ति को वह बढ़ाता है। हम सब किसी न किसी प्रकार के मंत्र को, ध्यान को, गीता के पाठ को या किसी न किसी विषय को पारायण करते ही होंगे। क्यों करते हैं? सैकड़ों बार कहने के बाद वो कंठस्थ हो गया है, हम जानते हैं। किंतु प्रतिदिन उसका स्मरण इसलिए करते हैं, वह करने से हमारे अंतर्मन, अंतःकरण की शुद्धि होती है। पुनः पुनः उसको अपने मस्तिष्क में लाने के कारण हम उससे प्रेरणा लेते हैं। कर्तव्य के पथ पर जाने के लिए वह ऊर्जा देती है।
इतना ही नहीं, एक शब्द को, एक वाक्य को, एक पंक्ति को हमने ये भी 10, 20, 25 वर्ष पहले पढ़ा होगा, सुना होगा। प्रतिदिन उसको कहते हुए, उच्चारण करते हुए उसके नए नए अर्थ के आयाम खुलते जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन के अनुभव प्रतिदिन ना बढ़ाते रहते हैं। इसलिए शब्दों के अर्थ, वाक्यों के अर्थ वह अधिक होते जाता है और गहरा होते जाता है। इसलिए स्वामी जी के जीवन के बारे में हमने कभी पढ़ा है, कई कथा सुनी है, इसलिए बात नहीं बनती। ऐसे विभूति पुरुषों के संदर्भ में बार बार सुनने से, पढ़ने से, बोलने से, अध्ययन करने से न केवल नई बातों की जानकारी मिलती है, इसे रिसर्च एकेडमिक दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु एक अंतःशक्ति, एक अंतः प्रेरणा उससे और अधिक वर्धन होते होते जाता है। इसलिए ऐसे पुण्यात्माओं के, महात्माओं के स्मरण करते रहना यह हमारा कर्तव्य बनता है। हम अपने लिए और समाज के लिए ऐसे कार्य बार बार करते रहेंगे। स्वामी जी के दिन के संदर्भ में आज विशेष रूप से ये भी कहा गया है, कुछ वर्ष पूर्व आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, ऐसे इसकी घोषणा हुई। स्वामी जी के जन्मदिन को ही, विवेकानंद जयंती को ही युवा दिवस ऐसे घोषणा करने के क्या कारण था? 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ अन्य विषयों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा करता है और उस दिशा में, उस परिप्रेक्ष्य में कई प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन करते हैं उस विषय को विश्व में आगे बढ़ाने के लिए। युवाओं के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 के वर्ष में यही सोचकर युवाओं के जो शक्ति है, ऊर्जा है, चेतना है, युवाओं के अंदर जो ज्ञान है, परिश्रम है, यह किसी भी देश और समाज के लिए उसके निर्माण में, उसके प्रगति में एक अहम भूमिका रखते हैं। तो इसलिए किसी भी समाज को अपने अगली पीढ़ी यानी युवाओं के संदर्भ में सोचना ही चाहिए, योजना बनानी चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 में ऐसे एक वर्ष की घोषणा की। उसी वर्ष भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के नाते स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती को पहचाना। तो तब से ऐसे युवा दिवस यह मनाते जा रहे हैं। कई वर्ष पूर्व की एक घटना मुझे याद आती है। हम लोग सिंडिकेट बैंक के नाम सुना होगा, एक नेशनलाइज्ड बैंक है। उसके जो प्रधान कार्यालय, हेडक्वार्टर है, वो कर्नाटक में है। सिंडिकेट बैंक के मैनेजमेंट ने युवाओं के संदर्भ में कुछ कार्यक्रम लिए। समाज की सेवा और नेतृत्व, लीडरशिप, इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और युवाओं के बीच इस नेतृत्व के बारे में सिखाने के लिए कार्यशालाएं, वर्कशॉप्स चलाने चाहिए, कैंप्स चलाने चाहिए। ऐसे सिंडिकेट बैंक ने योजना बनाई। इसलिए उन्होंने एक विशेष प्रकोष्ठ, सेल प्रारंभ किया, उस आयाम को प्रारंभ किया। उस आयाम के लिए जिन व्यक्ति से एक अधिकारी को उन्होंने दिया, उन्होंने एक विचार किया, जो लीडरशिप कैंप के लिए आना चाहते हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, ऐसे सभी युवक युवतियां एप्लीकेशन करें। तो उन्होंने क्या, हजारों लोग उस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए अपने नाम भेजा। बाद में इन्होंने एक प्रश्न उसमें पूछा था, आपको इस कार्य के लिए
आपके जीवन में आदर्श क्या है, हु इज योर आइडियल। आपके जीवन में इसके लिए किसको आप आदर्श मानते हो। तो कईयों ने अपने अपने हिसाब से लिखा था। भिन्न भिन्न प्रकार के देश के लिए काम किए हुए वैज्ञानिक, क्रांतिकारी, किसी ने चंद्रशेखर आजाद का लिखा, किसी ने भगत सिंह के लिखे थे, किसी ने और कुछ लिखा था। सब प्रकार के नाम आए थे। बाद में जब देखा उसमें सबसे अधिक लोगों ने 90% लगभग युवक युवतियों ने स्वामी विवेकानंद के नाम लिखे थे। दूसरा नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तीसरे स्थान पर अन्य अन्य, वो कम ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन देश के युवकों के युवावस्था में रहने वाले पुरुष, स्त्री, महिलाओं के मन में किस महापुरुष को आदर्श मानना है। ऐसे नहीं है कि देश के खिलाड़ियों की संख्या कम है, अभिनेताओं की संख्या कम नहीं है, राजनेताओं की संख्या कम नहीं है, लेकिन युवाओं के मन में स्वामी विवेकानंद के नाम सर्वोच्च स्थान पर क्यों रहा। उनमें से कई लोग विवेकानंद के साहित्य को बहुत अध्ययन किया, ऐसे नहीं है, देखा तो एक भी नहीं है, लेकिन एक विवेकानंद के नाम सुनते ही, वो चित्र देखते ही, उनके 2 वाक्य के बारे में जानते ही, सुनते ही युवाओं के मन के अंदर एक प्रेरणा जगती है, एक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण होगा कि देश भर में भारत के आज भी महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले युवक स्वामी जी के नाम से एक दीवाना बन जाता है। तो यही कारण है भारत के सरकार ने स्वामी जी के जन्म जयंती के दिन को युवा दिवस ऐसे माना। भारत में महापुरुषों की कमी नहीं है। यहां सदियों से, प्रारंभ काल से, वेद और वेद पूर्व के कालखंड से इतने प्रकार के विभूतियां, बड़ी हस्तियां, जीवन के हर क्षेत्र के अंदर साधना करने वाले जो आदर्श बन सकते हैं सदा सर्वदा के लिए, न केवल भारत की जनता के लिए, परंतु सारे विश्व के मानवता के सामने ऐसे श्रेष्ठ लोग यहां जन्मे हैं। हम कहते हैं रत्नाकराधौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्याम वंदे भारत मात्र। भारत मां के कोख से ऐसे लोग निकले हैं। ये रत्न प्रसवा है। भारत मां के बारे में कहते हैं रत्न प्रसवा है, यानी मानव रत्नों के यहां जन्म हुए। हर युग में, हर काल में, हर क्षेत्र में, हर आयाम में, जीवन के किसी भी क्षेत्र को मंगल बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए, विकसित करने के लिए, एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में उसको विकसित करने के लिए अपने जीवन के कण कण को, क्षण क्षण को जिन्होंने न्योछावर कर दिया, ऐसे महापुरुषों की मालिका हिंदुस्तान के अंदर आज भी विद्यमान है। हम उनके स्मरण करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। ऐसे मालिका में सभी महापुरुषों के एक गुणों के एकत्र यदि हमको देखना है, वो स्वामी विवेकानंद है। इसलिए स्वामी जी ने स्वयं को कहा, स्वयं मैं भारत हूं। क्या आत्मविश्वास है, क्या भारत के बारे में उनके ज्ञान है। भारत के अतीत को, वर्तमान को, भविष्य को जिन्होंने अनुभव किया, देखा, वर्णन किया, ऐसे स्वामी जी के जन्म दिवस पर आज
हम उनके संदर्भ में कुछ विचार, एक युवा वर्ग के नाते हम यदि विचार करें तो हम कई आयामों में सोच सकते हैं। विवेकानंद जी युवकों के लिए उन्होंने कहा, शरीर के बल होना चाहिए, चारित्र्य, इस पर उन्होंने जोर दिया। सेवा के बारे में उन्होंने आग्रह किया। भारत के युवाओं को उन्होंने कहा, बी स्ट्रांग, वीकनेस इज डेथ। आप यदि दुर्बल हो तो वो मृत्यु के समान है, इसलिए शक्ति की उपासना करो। प्ले फुटबॉल वेल, देन यू विल अंडरस्टैंड भगवद गीता बेटर। आप फुटबॉल को अच्छे ढंग से खेलेंगे तो आपके अंदर भगवद गीता को समझने की सामर्थ्य, समझने का सामर्थ्य बढ़ेगा। उन्होंने कहा, आई वॉन्ट men with muscles of iron and nerves of steel। हर बार स्वामी जी ने युवाओं के शरीर बल के ऊपर अत्यंत आग्रह किए। इसलिए सब प्रकार के दैहिक व्यायाम, शारीरिक साधना, इन विषयों के बारे में उन्होंने अपने मित्रों के बीच स्वयं भी वो करते रहे। तो इसलिए स्वामी जी के देह सौष्ठव, यह भी एक चर्चा का विषय बना था जब वो विदेश में प्रवास में गए थे, अमेरिका के और यूरोप के अंदर। लोगों ने कहा, ये भारत क्या है, ये व्यक्ति एक सन्यासी, लेकिन वहां के लोगों को शरीर के भी एक आकर्षण होता है, तो उन्होंने उसको भी लिखा, ही इज अ हैंडसम मैन। साधने और एक्सरसाइज के, शरीर के अंग साधना के कारण, व्यायाम के कारण कैसे वो है, इसके भी वर्णन वहां लोगों ने किया था। शरीर बल चाहिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म साधन के लिए, वो धर्म के लिए शरीर की शक्ति यह आवश्यक है। तो इसलिए विवेकानंद के नाम पर कितने योग केंद्र, प्राणायाम केंद्र, व्यायाम केंद्र, शाला कितने चलते हैं। विवेकानंद ने चारित्र के ऊपर आग्रह किया। विवेकानंद के जीवन में एकाग्रता के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। एक बार विदेश में जब वो कहीं जा रहे थे तो किसी एक पार्क में, शायद आपने ये कहानी सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, तो पार्क में कुछ नौजवान लोग एक वस्तु को बांधकर पिस्तौल से निशानेबाजी कर रहे थे, गोली मार रहे थे। प्लास्टिक गोली होगी, सही गोली होगी, जो भी हो, वो उससे कर रहे थे। तो विवेकानंद खड़े थे, वो इसको देख रहे थे। इनके वेशभूषा वगैरह देखकर वहां के विदेश के वो नौजवान बच्चे, उन्होंने कहा, व्हाट आर यू लुकिंग एट, विल यू ट्राई, क्या देख रहे हो, क्या निशानेबाजी करोगे? तो विवेकानंद जी ने उनसे हाथ से पिस्तौल लिया, दे दो। तो लिया तो उसको मारे। पहले गोली लग गई निशाने पर, दूसरे किया, दूसरे भी लग गई, तीसरे किया तो वो भी लग गए। तो लोग विवेकानंद जी को अपने कंधों पर उठा लिया हो करके। तो यार, आपके ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, वेयर डिड यू लर्न? तो विवेकानंद ने कहा, मैं जिंदगी में पहली बार पिस्तौल पर हाथ रखा भैया। दे डिडंट बिलीव,
उनको लगा ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जो उनके पहली बार अपने पिस्तौल हाथ में उठाया और निशानेबाजी ऐसे 100% पक्का। तो उन्होंने कहा हाउ, ये कैसे होता है। विवेकानंद ने इनको समझाया एकाग्रता। तो विदेशी बच्चों को उन्होंने समझाया एकाग्रता से होता है, कंसंट्रेशन। तो उन्होंने पूछा कंसंट्रेशन कैसे होता है, तो उन्होंने कहा चारित्र के बल से। विवेकानंद से वो चारित्र के बल, वो कैरेक्टर वो समझ नहीं पा रहे थे, समझाया लोगों को उन्होंने। आप जीवन में चारित्र के बल पर एकाग्रता को साधन कर सकते हैं, चारित्र के बल पर दुनिया को झुका सकते हैं। तो इसलिए चारित्र, मनुष्य के अंदर शील के और चारित्र के निर्माण की आवश्यकता है। किसी भी समाज, राष्ट्र चारित्रहीन होने से सब कुछ खो देगा। If the wealth is lost, nothing is lost. If the health is lost, something is lost. If the character is lost, everything is lost. यह हमने सुना ही होगा। युवाओं के अंदर इस चारित्र निर्माण के बारे में विवेकानंद का आग्रह था। श्रद्धा का निर्माण। श्रद्धा क्या होती है? किसी एक विषय पर आपको श्रद्धा है, आस्था है, उसको संपूर्ण रूप से आप उस पर विश्वास रखते हैं, आत्मसात करते हैं। जिस चीज पर, जिस बात पर, जिस व्यक्ति पर, जिस विचार पर श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा के कारण अपने अंदर शक्ति बढ़ती है और आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त होता है, पथ स्पष्ट होता है। श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति चुनौती के समय झुकता नहीं है, संकटों के सामने हारता नहीं है। विवेकानंद ने कहा नचिकेता जैसी श्रद्धा चाहिए। हमारे उपनिषद की कहानी है नचिकेता की। नचिकेता जैसे मुझे 10 लोगों को दो, मैं सारे विश्व की कायाकल्प कर दूंगा। आई विल रेवोल्यूशनाइज द होल वर्ल्ड, गिव मी 10 नचिकेतास। नचिकेता की श्रद्धा अपने विचार पर, अपने प्रश्न पर। यमराज को झुकाया उन्होंने, प्रश्नों से यमराज को बांध दिया। भारत के उपनिषद के हमारे परंपरा में श्रद्धा के लिए नचिकेता के नाम लिया जाता है। तो विवेकानंद ने वह कहानी लोगों को सुनाई। तो ऐसे नचिकेता जैसी श्रद्धा चाहिए, ऐसे शक्ति, चारित्र, श्रद्धा। ये क्यों विवेकानंद इन बातों पर आग्रह किए भाई? विवेकानंद एक ऐसे समाज, ऐसे देश, ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए कटिबद्ध थे। वो आध्यात्मिक क्षेत्र के शिखर प्राय के व्यक्ति तो थे ही। वो गेरुआ पहने, सन्यासी बने, आध्यात्म की साधना किए, लेकिन वो इस लौकिक जीवन से मुंह मोड़कर, उससे दूर होकर, हिमालय की गोद में बैठकर अपने अकेले के मोक्ष के लिए साधना करने वाले ऐसे व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने सामान्य लोगों के लिए हृदय के अंदर संवेदना रखकर, आंखों में आंसू भरते हुए, रोते हुए उन्होंने भारत के और दुनिया के दुर्भाग्य, जो जीवन के अंदर सब प्रकार के संकट से त्रस्त हुए थे, ऐसे मानवता के लिए उन्होंने हमेशा न केवल बोले, आंसू बनाया है, लेकिन उसके लिए कुछ करने के लिए भी उन्होंने
दिशा दी। उन्होंने कहा इसलिए ऐसे जो संकट में लोग हैं उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। भारत को यदि खड़ा करना है दुनिया के सामने एक श्रेष्ठ राष्ट्र के नाते, भारत को उस प्रकार एक विश्व के राष्ट्र मालिका के बीच में सम्मान स्थान दिलाने चाहिए, तो हमें भारत को सुदृढ़ बनाना है। तो भारत को सुदृढ़ बनाना है तो भारत के सर्वसामान्य लोग, यहाँ के हीन दीन लोग, यहाँ के गरीब निर्धन लोग, यहाँ के पापी लोग, दरिद्र लोग, इनके सेवा किए बिना नहीं हो सकता। उन्होंने उद्धार की बात नहीं की। उद्धार करने वाले आप कौन होते हो? तुम तो मनुष्य हो, तुम भगवान थोड़े हो जनता के उद्धार करने के लिए। हीन दीन निर्धन लोगों के उद्धार करने के अहंकार मत रखो, उनकी सेवा करो। उन्होंने आपको सेवा करने के लिए मौका दिया है, अवसर दिया है। इसलिए स्वामी जी ने कहा त्याग और सेवा भारत के भूमि के दो आदर्श हैं। भारत के सारी संस्कृति सभ्यता, भारत के सारे ज्ञान और भारत के यहां की विशेषता त्याग और सेवा के बिना संभव नहीं। भगवान राम ने त्याग और सेवा की मूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने महल छोड़े, स्थान छोड़े, सब करे धर्म की स्थापना के लिए, जीवन के सुख के पीछे भागे नहीं। एक सिद्धार्थ राजकुमार, जीवन के कष्ट को उन्होंने देखा। उन संकटों को देखने के बाद उनके मन के अंदर प्रश्न उठे। करुणा के मूर्ति बने सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध बना। त्याग और सेवा के और एक मिसाल बन गए। भारत के परंपरा त्याग और सेवा से ऐसे भर पड़े। तो इसलिए सेवा की बात स्वामी जी ने कहा, so long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them. जब तक लाखों लोग अज्ञान और भूख से त्रस्त हैं, संकट में हैं, उनके बदौलत सुशिक्षित होकर उनकी आवाज आप नहीं सुनते हो, तुम द्रोही हो। विवेकानंद ने कहा था, मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूं जिन्हें मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं। मनुष्य के अंदर ईश्वर को देखो। दरिद्र नारायण की सेवा, दरिद्र देवो भव, पापी देवो भव, क्या बात है। एक नौजवान सन्यासी देश दुनिया के लोगों को मनुष्य के अंदर के इस ईश्वर के जो कल्पना है भारत के, हमारे विश्वास है, हमारे आस्था है, जड़ चेतना में दिव्यांश है, परमात्मा के अंश है। यह हमारे वेद ने, उपनिषद ने, यहाँ के साधकों ने न केवल बोला है न लिखा है, प्रयोग से, अनुभव से, अनुभूति से इस विषय को उन्होंने स्वयं साक्षात्कार करके इन चीजों को बताया है। तो ईश्वर अंश हर किसी में है, तो आपको सेवा करने के लिए मौका मिला है। इसलिए यहां जहां आवश्यकता है सेवा के, वो कार्य करना चाहिए। विवेकानंद जी के नाम पर भारत और दुनिया के अंदर सैकड़ों, हजारों, लाखों छोटी बड़ी संस्थाएं, गली मोहल्ले में से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक सेवा करने की संस्थाएं आज काम कर रही हैं। विवेकानंद के एक नाम लेकर उस प्रेरणा से, हाँ भाई, विवेकानंद ने ये कहा था, देशभक्ति की संचार करवा दिया।
अभी हमने स्वदेश मंत्र को भी सुना। भारत क्या है? भारत के बारे में विवेकानंद के उद्गार, महात्मा गांधी कहते हैं विवेकानंद को पढ़ने के बाद भारत के बारे में मेरी भक्ति कई गुना बढ़ गई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी जो प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने विवेकानंद के बारे में उन्होंने कहा, इन विवेकानंद एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड नथिंग इज नेगेटिव। विदाउट हिम there would have not been our religion and our freedom. राजा जी कहते हैं विवेकानंद saved Hinduism and saved India. उनके बिना भारत में धर्म की रक्षा नहीं होती, भारत के स्वातंत्र नहीं होता। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, रोमन रोला आए थे भारत में विवेकानंद जी के बारे में जानने के लिए, लिखने के लिए। विवेकानंद जी के चले जाने के बाद, विवेकानंद शांत होने के बाद 30 साल के बाद आए थे। रोमन रोला लिखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको कहा, इफ यू वांट टू नो इंडिया यू शुड स्टडी विवेकानंद। तो भारत, स्वामी जी, मैं ही भारत हूं कि यहां तक वो एक आत्मविश्वास, भारत के साथ वो तन्मयता से उसके साथ लीन हो गए। तो इसलिए वो स्वयं कहते थे, आई एम कंडेंस्ड इंडिया, मैं घनीकृत भारत हूं। भगिनी निवेदिता कहती है, स्वामी जी के दिल में धड़कन भारत की, खून में भारत, रग रग में भारत। वो बोलते हैं तो भारत, सोचते हैं तो भारत। भारत के बिना उनके स्वप्न नहीं होते। भारत के उत्थान के लिए, भारत के भविष्य के लिए विवेकानंद इस प्रकार के विचारों ने किया। तो देशभक्ति, विवेकानंद की प्रेरणा से भारत के क्रांतिकारी, विप्लवकारी जो कार्य हुए देश के मुक्ति के लिए, देश के स्वाधीनता के लिए, उन सब के पीछे विवेकानंद जी के ये जो संदेश है, उनकी प्रेरणा है, वो कार्य कर रहे थे। तो ऐसे भारत भक्ति और विवेकानंद भारत के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन होना चाहिए, विवेकानंद ने कहा, एजुकेशन भारत के अंग्रेजों के जमाने में और उससे पहले भी अंग्रेजों के विशेष दुष्ट योजना से भारत की शिक्षा पद्धति ध्वस्त हो गई। उन्होंने नष्ट किया। भारत के लोगों को यहाँ के शिक्षा प्रणाली से एक सभ्यता के, संस्कृति के श्रेष्ठ मानव निर्माण करने के जो यहाँ के शिक्षा पद्धति थी, उसको समाप्त करके अंग्रेजों के गुलाम बनाने वाली शिक्षा को उन्होंने यहाँ स्थापित किया। यद्यपि नरेंद्र अंग्रेजों के ही विद्यालयों में, कॉलेज में पढ़ने के पश्चात भी भारत के मूल को, सत्व को, यहाँ के स्वत्व को वो जानते थे, अध्ययन किए थे। इसलिए उन्होंने कहा यहाँ के एजुकेशन को बदलना चाहिए। भारत के शिक्षा प्रणाली के बारे में उन्होंने अपने विचार रखे। बाद में भगिनी निवेदिता ने उसी प्रकाश में आगे बढ़कर हिंट्स ऑफ एजुकेशन, हिंट्स ऑन एजुकेशन उनकी पुस्तक है। शिक्षा कैसे मनुष्य के निर्माण करना चाहिए, वी वांट दैट एजुकेशन विच मोल्ड्स द कैरेक्टर।
a man-making education and character-building education. विवेकानंद केवल भावना के तरंगों पर जीने वाले नहीं थे, जमीन के वास्तविकता के बारे में वो जानते थे। जब वो कलकत्ता से निकलकर कन्याकुमारी तक पहुंचे, पूरे देश के दर्शन किया, कितने प्रकार के लोगों से मिले, राजा महाराजाओं से मिले, पढ़े लिखे सुशिक्षित लोगों से मिले, लोकमान्य तिलक जैसे श्रेष्ठ महान पुरुषों के साथ मिले, विद्वान लोगों से मिले, काशी में वाराणसी में, सामान्य लोगों से मिले, ट्रेन में गए, पैदल गए, भूखे रहे, 4 दिन भोजन भी नहीं मिला, ऐसे भी दिन रहे। विवेकानंद भारत के एक एक चीज को यहां अनुभव किए। इसलिए जमीन की वास्तविकता, भारत के समाज के स्थिति उनको संपूर्ण रूप से परिचित थी। इसलिए भारत के बारे में वो कहते हैं कैसे भारत चाहिए। वो जानते थे आज नहीं तो कल इस देश की परकीय सत्ता, विदेशी सत्ता यहां से चली जाएगी। इसलिए भारत के लिए कौन चाहिए। उन्होंने शिक्षा के बारे में जैसे सोचा, विज्ञान और तंत्र ज्ञान के बारे में उन्होंने विचार रखा। एक स्वामी, एक सन्यासी, लेकिन देश के लिए आने वाले कई दशकों के लिए जिस प्रकार के का साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, उसको सोचकर उन्होंने प्रेरणा दी जमशेदजी टाटा को। आज टाटा में टिस्को खड़े हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को के लोगों ने अपने पुस्तक में, अपने साहित्य में, अपने कैलेंडर में विवेकानंद जी के चित्र लगाते हैं। ही इंस्पायर्ड टू एस्टैब्लिश टिस्को। जमशेदजी टाटा से मिले तो बात हुई समुद्री जहाज में जाते समय, तो इसलिए उन्होंने पूछा आप काय के लिए जा रहे हो। टेक्नोलॉजी लाने के लिए, फैक्ट्री शुरू करनी है, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ठीक है, कितने बार ऐसे उद्देश्य के ऊपर निर्भर रहोगे। इसलिए अपने देश में टेक्नोलॉजी अध्ययन करने वाले यहां के टेक्नोक्रेट्स को, यहां के लोगों को तैयार करना पड़ेगा। स्वामी जी ने उनको प्रेरणा दी। जमशेदजी टाटा ने पूछा क्या करना है। स्टार्ट एन इंस्टीट्यूशन, एक विज्ञान के, तंत्र ज्ञान के लिए एक संस्था प्रारंभ करो। समुद्री जहाज में यात्रा करते समय यह विचार हुआ था। जमशेदजी टाटा जापान में उतरे, बाद में गए, वापस आने के बाद उनके दिमाग में स्वामी जी ने यह कहा था, युवा सन्यासी ने कहा था, इसलिए स्वामी जी के संपर्क था ही। पत्र लिखा उन्होंने, मैंने तय किया है ऐसे एक संस्था शुरू करना है, इसके डायरेक्टर के नाते आपको आने हैं। पत्र लिखा स्वामी जी को। स्वामी जी ने कहा मैं नहीं आने वाला हूं। लेकिन स्वामी जी ने क्या किया, मैसूर के राजा को संपर्क करके उनको बताया जमशेदजी टाटा बेंगलुरु में एक संस्था शुरू करें, इसलिए आप जमीन दो। मैसूर के राजा ने जमीन दी, 2 लाख रुपए दिए उन दिनों में अपने कंट्रीब्यूशन के नाते। जमशेदजी टाटा वहां संस्था शुरू किए, विच इज नाउ नोन एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। भारत के एक श्रेष्ठ विज्ञान और तंत्र ज्ञान के संस्था के नाते है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जो साहित्य छपता है उसमें कहते हैं विवेकानंद हु इंस्पायर्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वहां उनकी मूर्ति खड़ी है। विवेकानंद ने एक जगह पर कहा, यदि संभव है तो मैं चाहता हूं इस देश के बुद्धिमान नौजवानों को मैं जापान भेजूं, वो टेक्नोलॉजी सीखकर वहां से पढ़कर आए, इंजीनियरिंग पढ़कर आए। उन्होंने कहा विवेकानंद ने। स्वामी जी एक तरफ कहते अध्यात्म की साधना के लिए, श्रद्धा और चारित्र के संदर्भ में भारत के लोगों के सेवा करने के लिए आग्रह करते हैं, उनके लिए प्रेरणा देते हैं। और दूसरी तरफ करते हैं शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विज्ञान, तंत्र ज्ञान, इसके बारे में कहते हैं। तीसरी तरफ वो विप्लवकारियों को मदद करते हैं, दिशा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, देश के अंदर स्वाधीनता की लड़ाई को आगे बढ़ाओ। स्वामी जी ने अपने उस अवतार काल में भारत के लिए जो किया है
वह आने वाले युगों युगों के लिए भी हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। और स्वामी जी ने हिंदू समाज के संगठन के बारे में भी बार बार कहा है। उनके भाषण में हिंदू नेशन कई बार इसके उल्लेख होता है, हिंदू नेशन। स्वामी जी इज नोन एज हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया। शिकागो में उनके बहुत प्रसिद्ध भाषण होने के बाद वहां के अखबारों में जो आया था वो हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया। स्वामी जी ने कहा हिंदू ये शब्द आज यदि इसके बारे में घृणा है, आज इसके बारे में कोई संकोच है, वो हम थक गए हैं, हम पिट गए हैं। एक समाज के नाते हम दुनिया के सामने हीन दीन हो गए हैं। इसलिए अपने कर्मण्यता से, अपने स्वयं के परिश्रम से, अपने आत्म सामर्थ्य से हम इस शब्द को ऐसे ताकत दे, ऐसे शक्ति दे, विश्व के किसी भी भाषा में इससे बेहतर शब्द का निर्माण ही नहीं हुआ है। ऐसे हम इस शब्द को, हिंदू शब्द को ऐसे गौरव दिलाए, क्या बात है। आज हिंदू शब्द के बारे में संकोच से, घृणा से देखने वाले लोगों को स्वामी जी के इन वाक्यों को पढ़ाना चाहिए। हम दुनिया में ऐसे करके दिखाएंगे। स्वामी जी से पूछा गया, जब विदेश से वो वापस आए थे, आपने विदेश को तो भारत के श्रेष्ठ संस्कृति के जीवन मूल्यों के बारे में तो आपने कहा उनको, भारत क्या है समझाया, भारत की भूमि की संदेश क्या है आपने उनको बताया। इज देयर एनीथिंग दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम? हमें भी उनसे कुछ सीखना है क्या? विवेकानंद ने कहा संगठन, संगठन के बिना समाज की शक्ति नहीं होती, संगठन चाहिए। भारत को संगठन मालूम था बुद्ध के जमाने में, वेद के काल में, उपनिषद के काल में, चाणक्य के जमाने में। यहां संगठन करने के कार्य सभी ने किया था, समर्थ रामदास ने किया था। परंतु कालक्रम में समाज के अंदर आत्मविस्मृति के कारण, स्वाभिमान शून्यता के कारण, स्वार्थ के कारण, आत्मकेंद्रितता के कारण हम एक दूसरे के प्रति प्रेम के बजाय, आत्मीयता के बजाय दूरी बनाए। जाति बिरादरी के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, तुम अलग हो मैं अलग हूं, इस प्रकार की भाव भावनाएं दुर्भाग्य से भारत के समाज के अंदर प्रवेश करने के कारण हम असंगठित हो गए। हम असंगठित हो गए तो दूसरे ने हमको गुलाम बनाया, हमको और दूर किया, हमको तोड़ा। इस कारण से हम गुलामी सहन करना पड़ा हमको। इसलिए संगठन के अंदर जो शक्ति है उसको पहचाना स्वामी जी ने। उन्होंने कहा हिंदुओं के संगठन होना चाहिए। स्वामी जी ने अपने जीवन में सन्यासियों के संगठन तो प्रारंभ किया रामकृष्ण मठ के नाते। उनके मन के अंदर लौकिक लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए भी ऐसे एक संगठन क्या करने की आवश्यकता थी, ऐसे मालूम था। उन्होंने उल्लेख भी किया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में वो कर नहीं पाए, या उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के लिए वो कार्य छोड़ के हो गए। उन्होंने जो बात बताई शरीर बल के लिए, संगठन के बारे में, चारित्र्य के बारे में, श्रद्धा के बारे में, भारत के भक्ति के बारे में, भारत के भविष्य के बारे में, भारत के सेवा के आवश्यकता के बारे में, इन सारी बातों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराव हेडगेवार ने संघ की स्थापना करते हुए इन बातों को बीज रूप में उसमें रखा। अपने जीवन में 15 वर्षों के कार्यकाल में
इनको किसी न किसी प्रकार से पल्लवित पुष्पित होते हुए उन्होंने देखा। इसलिए स्वामी विवेकानंद के जो कथन है, उद्गार है, संदेश है, उन्होंने बताया हुआ जो पथ है, उन्होंने दिखाया हुआ जो स्वप्न है, अप इंडिया, कॉन्कर द वर्ल्ड विथ योर स्पिरिचुअलिटी, उत्कृष्ट भारत, तुम्हारे आध्यात्मिक शक्ति से विश्व विजयी बनो। तो इस विचार के वारिस के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य पिछले 9 दशक से अधिक कालखंड से हो रहा है, 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। स्वामी जी के कार्य और संदेश की प्रेरणा लेकर भारत में संघ के कार्यकर्ता इन सारे विषयों के संदर्भ में किसी न किसी प्रकार के छोटे बड़े काम को, प्रकल्प को, आयोजन को, आयाम को साकार रूप दिए हैं। इसलिए संघ के स्वयंसेवकों के, संघ के कार्यकर्ताओं की यह भूमिका बनती है, कर्तव्य बनता है, हम अपने जीवन में स्वामी जी ने जो विचार रखे उसको न केवल आत्मसात करें, उसको अपने जीवन में व्यक्तिशः, अपने परिवार में, अपने कार्यक्षेत्र में, संगठन के द्वारा इसको उतारने के लिए हम अपने जीवन के हर चीज को समर्पित करने के लिए संकल्प करें। विवेकानंद ने ये सपना देखे, भारत उठेगा, लेकिन किसके बल पर? यहां के सर्वसामान्य लोगों के बल पर। इसलिए सामान्य लोग वो भारत के आत्मा को समझते हैं, इसलिए उनके अंदर वो जागृति लानी पड़ेगी। इसलिए संघ के कार्य में सामान्य लोगों से संगठन करते हुए समाज को एक उजागर करने का, समाज को कर्तृत्वशाली बनाने के, समाज के अंदर कर्मण्यता लाने के, समाज के अंदर संगठन भाव को प्रस्थापित करने के, यह कार्य एक दैवीय कार्य है, एक ऐतिहासिक कार्य है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसलिए संघ के कार्यकर्ता समाज के अंदर आज की आवश्यकता जो है समाज परिवर्तन के, उन बातों को विवेकानंद के जीवन के संदेश के प्रकाश में अपने को करना ही होगा। आज भी सेवा की आवश्यकता है। सेवा के विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों, आयामों के द्वारा संघ के स्वयंसेवक पूरे भारतवर्ष में 1 लाख से अधिक सेवा कार्य जो चलाए हैं, वो समाज को भी उस कार्य में लगाए हैं, समाज के सहयोग से साथ हम कर रहे हैं। इसको बढ़ाना ही पड़ेगा। एक एक परिवार में समाज के लिए कार्य करने वाले पीढ़ी तैयार होनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक परिवार में वो हिंदुत्व भाव को, हिंदुत्व के जीवन के आचरण की पद्धतियों को, जीवन मूल्यों के प्रति श्रद्धा को, भारत की भक्ति को, स्वदेशी जीवन शैली को यह लाना पड़ेगा। इसलिए भारत केवल आर्थिक और मिलिट्री के रूप से शक्तिशाली नहीं हो सकती जब तक एक एक परिवार यहां के संस्कृति, जीवन मूल्यों के कारण वो शक्तिशाली नहीं होते। तो भारत को शक्तिशाली बनाना है, समृद्धशाली बनाना है, भारत को दुनिया के राष्ट्र मालिकाओं में श्रेष्ठ सम्मानित स्थान प्राप्त कराना ही है। अगली कई पीढ़ियों के बाद करनी है, या हम अपने आंखों के सामने कुछ बातें होते हुए देखेंगे। क्या सौभाग्य है इस पीढ़ी के 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात अयोध्या के राम जन्मभूमि पर भगवान राम की
उनके लिए एक मंदिर खड़ा होते हुए हम देख रहे हैं। ये अपने आंखों के सामने हो रहा है। भारत उठ रहा है। भारत की शिक्षा, भारत की आर्थिक, भारत की कृषि, ये सारे चीजों में अपने को जीवन के हर क्षेत्र में एक परिवर्तन लाना पड़ेगा। संस्कृति के जड़ों को नहीं भूलना है। परंपरा के श्रेष्ठ बातों को हमें सुदृढ़ करके रखना है। आधुनिकता के चकाचौंध में हमें ऐसे समाज नहीं निर्माण करना है जो शोषक समाज बने, मौज मस्ती के समाज बने, पर्यावरण को नष्ट करने वाले जीवन शैली बने। यह हमको नहीं करना है। हमें सृष्टि के साथ जीने हैं। विविधता के साथ हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, समर्थ बनाना चाहिए, समृद्ध बनाना चाहिए। हम अहंकार के साथ नहीं जिएंगे। देश के अंदर हम शक्तिशाली हो गए, हम दुनिया के लिए उदार चरिताराम तो वसुदैव कुटुंबकम, इस श्रेष्ठ संदेश को जमीन पर उतारने वाले समाज बनेंगे। ऐसे बनाना है तो इस देश के अंदर के वर्तमान नौजवान पीढ़ी एक तरफ भारत की मूल्य परंपरा को, संस्कृति को बनाए रखना, समाज के संगठन के बारे में प्रयत्न करना ही पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं प्रतिनित्य संघ के कार्यकर्ता के नाते। समाज में ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, छुआछूत, किसी भी प्रकार के भेद जो है उस विषमता को हमें समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के अंदर ये परमात्मा के अंश है। तो ये कार्य करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो दुनिया के सामने चुनौती है, उस चुनौती को सामना करने वाले एक पुरुषार्थी समाज को हमें खड़ा करना है। हम उस रास्ते पर चले, भगवान की कृपा हमें है, समाज का सहयोग हमें प्राप्त है, हमारे विश्वास है हम करेंगे। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने डॉक्टर जी के प्रयत्न से और विवेकानंद जी के प्रेरणा से जिस महान राष्ट्रीय कार्य जो वैश्विक संदर्भ में मानवता के उद्धार के लिए है, उस कार्य को हम संपन्न करने के लिए अपने जीवन में अपने सब कुछ इसमें समर्पित करते हुए जीवन को सार्थक और सफल बनाने के संकल्प ले। इतना ही आज के इस पावन दिन पर मैं आपके सामने निवेदन करता हूं।